Hello everyone, welcome to our YouTube channel National Skills Network. I'm Pratyusha and we're really happy to share the latest edition of our weekly news bites with you. We as a team put in a lot of time and effort to study all the recent updates from the evolving work integrated education system in India so that we share on only the relevant ones with you. So now let's quickly move ahead and catch a glimpse of all the highlights of this week, and later I'll talk about the regular updates in Hindi as usual. So without much delay, let's go ahead and look at what are the highlights of this week. One of the important activities for me every day is to spend time studying the developments and trying to see the trend and analyze them in the emerging work integrated education ecosystem in India, of which skill development is a very important aspect. So, one of them was to do with Jharkhand Staff Selection Commission, which has advertised for industrial training officers. I thought this was a very interesting post, and we are sharing the link for applying for this post in case it interests you. In Jamshedpur, NIT Jamshedpur is exploring closer collaboration with industry, and when we say industry here, they are looking at MSMEs, that is Lagu Udyog as we call them. So I thought this is another important development, perhaps which will try to bring the industry and academia closer to deliver work integrated education in much more meaningful ways. Another trend which interests me a lot and which I closely follow is to do with global mobility. So here I find two important updates. One is to do with the Maharashtra government setting up a task force for sending skilled people, skilled professionals to European countries. And TITP, which is again got to do with global mobility, the technical intern training program in collaboration with Japan, has quite a few sending organizations in India which work closely with CII. One of them, Nihon EduTech, has just reached a milestone of sending 300 youth to Japan for various job roles and respective training as well. तो ये थे इस हफ्ते के कुछ हाइलाइट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ के और अदर रेगुलर अपडेट्स के बारे में जानने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजना अप्रेंटिसशिप और समाचार 13 जून 2023। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कुछ कौशल विकास समाचार के बारे में। पर उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पर हम रेगुलरली अप्रेंटिसशिप जॉब्स एंड ऑल द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं और इनके डेडिकेटेड पेजेस भी है हमारे वेबसाइट पर। तो आपको अगर अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में, किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में या फिर किसी भी जॉब के बारे में जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पर इन सारे ये जो डेडिकेटेड पेजेस है उन पर विजिट करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। इन सब का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जानते हैं, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस क्या क्या इस हफ्ते क्या क्या अपडेट्स हमारे पास है इस हफ्ते। एमएसडीई और एनएसडीसी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 3 और 4 जून 2023 को कौशल महोत्सव नामक 2 दिवसीय रोजगार मेला आयोजन किया था। एनएसडीसी, मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन ने पेशेवर डिग्री और डिप्लोमा के लिए फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में एकेडमिक क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। टाटा टेक्नोलॉजी ने हाल ही में उद्योग 4.0 यानी कि इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों को पूरा करने के लिए और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक सहायता प्रदान करने और नए बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु में 22 तकनीकी केंद्रों का उद्घाटन किया है। टीआईएसएस एसबीई मुंबई ने शैक्षणिक वर्ष
एकेडमिक ईयर 2023-2024 के लिए नवीन व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड के साथ साझेदारी की है। तेलंगाना इंडस्ट्रियलिस्ट फेडरेशन टीआईएफ ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टीआईएफ एमएसएमई ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में एक कौशल विकास केंद्र और सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किया है। साइन फाउंडेशन ने कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए महबूब नगर में ग्रामीण कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। तो चलिए आज जानते हैं ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स। यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस 26 जून 2023 से बेंगलुरु में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करेगा। सूक्ष्म और छोटे ड्रोन के लिए डिजाइन किए गए 5 दिवसीय कार्यक्रम को डीजीसीए ने भी मंजूरी दे दी है। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए फ्रेंचाइज ओन एंड फ्रेंचाइज ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पेश करने की योजना बनाई है। हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मदुराई में एक उन्नत एयर मोबिलिटी लॉन्च करेगी जो कि ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समर्पित होगा, क्योंकि यह देश के ड्रोन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाजार अवसरों की पहचान करने के बाद हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने यह निर्णय लिया है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ हाइलाइट्स। अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर इसका हमारे वीकली न्यूज बाइट्स का वेब वर्जन आता है, उसे चेक करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इनिशिएटिव ड्रोन फ्लुएंस जो हमने लॉन्च किया था उसके वेबसाइट पर विजिट करके ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे रेगुलर अपडेट्स जान सकते हैं और ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में और बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं। तो उसे विजिट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।